As we have fourth semester Sakib also here, so you can continue with us because we are talking on a topic that is on car rentals. We are talking on some services like Uber and Ola, and that will be very informative to you as well. So these car rental companies in tourism, travel agencies, tour operators also mention the services of car rental companies. And you should know what actually a car rental company does. Car rental company is actually a business in which an entrepreneur keeps a fleet of vehicles, and then uh, that entrepreneur has got offices at various locations which are important from the tourist point of view, like airports, some important cities. Then what happens? Suppose a tourist will come to, say, to Srinagar with his or her family, and if the tourist wants to avail the car rental facility, although still in Kashmir car rental business is not being started yet as such, but I'm giving an example that if car rental services he wants to avail, then the car rental company has got its website or it has a license with a travel agent who acts as an intermediary for selling that service. So then what happens? Then in that case, the person books a car through car rental company online, and some documents like suppose driving license and some other details are required, which are being sent to the company so as to endorse that the person who is going to take the car is a genuine person who has a valid driving license as well. Then that vehicle number is being given to him, because first of all he will select which type of car he will like to have, because different types of cars have different types of rents. If it is a luxury car, it will be having more rent rather than a standard car. So the person chooses the car according to the choice or the budget. Then if the person is already having, suppose if he is booking through a tour operator who is having already endorsing the credibility of that customer, then he does not need to go for physical verification. Otherwise, there are some more procedures where the car rental company ensures that the buyer is genuine. So then he goes to the pickup point. Suppose airport, if he wants to pick up the car from the airport, the car is ready for him to take, and he is handed over the keys there of the car, and then he takes the car himself to the place where he wants to go. Suppose he wants to go to Gulmarg. He will drive this car to Gulmarg, and he can keep this car. Suppose he wants to stay in Gulmarg for a night, other day he wants to go to Pahalgam, and then maybe then he wants to go to, say, Kargil, then Leh. Suppose he has and then maybe he has a flight back to Delhi from Leh. So in that case, the person can take the car to Kargil, then he can stay in for a night or two, whatever his program is at Kargil, then he can go to Leh in the same car, then he can visit places at Leh during his stay for 1, 2 or 3 days. Then once he will be
going back to Delhi, he can deliver the car to the car rental company's Leh office. तो फिर वो वहाँ से बाय एयर जा सकता है जहाँ पे उसको जाना है. तो ये कार रेंटल बिजनेस होती है. यू गॉट इट. कार रेंटल बिजनेस तो ये होती है कि इसमें ये जो होता है, सपोज एंटरप्रेन्योर ये रखता है गाड़ियाँ अवेलेबल अपनी, तो उन गाड़ियों को टूरिस्ट्स यूज़ कर सकते हैं पे करके उनकी रेंट, जिसमें उनको ड्राइवर नहीं होता है साथ, वो खुद ही ड्राइव करते और फिर वो उस गाड़ी को उसी तरह यूज़ करते हैं जैसे वो अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं. तो दे आर यूजिंग दैट कार फॉर द डेज. उसका होता है सपोज पर डे के हिसाब से वो रखते हैं उसका रेंट. सपोज में भी पर डे 2000 हैं, 3000 हैं, जो भी रखा है गाड़ी के टाइप के हिसाब से. तो फिर जितने दिन वो अपने पास उस गाड़ी को रखेगा, या बुकिंग के वक्त ही वो मेंशन करता है कि मैं डिलीवर किस पॉइंट पे गाड़ी करूं और कितने दिन मुझे अपने पास गाड़ी रखनी है, उसी हिसाब से उसका ये बनती है बिल. और उसकी पेमेंट वो ऑनलाइन भी कर सकता है, या जब वो डिलीवर करता है गाड़ी ऑफिस पे, तो वहाँ पर भी उस डिलीवरी बॉय को वो उसकी पेमेंट कर सकता है विद अ प्रॉपर रेसिप्ट. तो ये कार रेंटल बिजनेस होता है. इसका जो स्टार्ट है ये हुआ लगभग 1906 में. एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था ये बिज़नेस पहले. तो फिर 1912 में एक कंपनी थी, जर्मन कंपनी, उसका नाम था सिक्स्ट, SIXT, सिक्स्ट ऑटो फैन. तो उन्होंने फिर 1912 में इस बिज़नेस को एक फुल फ्लेज्ड तरीके से स्टार्ट किया. दैट टाइम दे स्टार्टेड इट एट अ वेरी प्रोफेशनल लेवल ऑफ. इमेजिन कीजिए लगभग 108 साल पहले उनका ये कॉन्सेप्ट, और उस वक्त जर्मनी में उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया. तो फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब इस बिज़नेस के बेनिफिट्स लोगों को लगे और फैसिलिटी लोगों को लगी कि ये एक अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे बेनिफिट्स हैं, तो इस फैसिलिटी को लोगों ने पसंद किया. क्योंकि सपोज़ कोई दूर जाता था तो वो अपनी गाड़ी नहीं ले सकता था वहाँ पे. सपोज़ यहाँ से भी किसी को जाना है मुंबई, तो उसको मुंबई में फिर अपना फ्लैट है या बिज़नेस है, तो 10 दिन 5 दिन बैठना है वहाँ पे फिर मूवमेंट करनी है, लोगों से मिलना है. तो वो चाहता है कि मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे लूँ, लेकिन यहाँ से मुंबई इतना दूर उसको गाड़ी लेना मुश्किल होता है. तो फिर अगर उसको वहाँ पे ये फैसिलिटी मिलती है कि वो मुंबई जाए, एयरपोर्ट से ही उसको एक गाड़ी मिले जो जितने दिन वो वहाँ पे रहे उतने दिन उसके साथ हैं वो गाड़ी, तो इसको बहुत आसानी होती है. दूसरा चीज़ है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो एग्ज़ाम्पल दी मैंने आपको कि जम्मू मतलब श्रीनगर एयरपोर्ट से किसी ने गाड़ी ली, उसको कश्मीर भी घूमना था पूरा, फिर उसको कश्मीर से प्रोग्राम था लद्दाख चक्कर करना, तो फिर उसको वापसी की फ़्लाइट श्रीनगर से नहीं थी, लद्दाख से थी. तो अब उस सूरत में इसको कितना ये फिजिबल हो गया, कितना बेटर रहा उसके लिए, क्योंकि उसने श्रीनगर एयरपोर्ट से उसने कार रेंट की, फिर पूरा कश्मीर सपोज़ गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग उसमें घूमा, उसके बाद वो करगिल गया उसी गाड़ी में, उसके बाद लद्दाख गया, फिर लेह में भी उसने जो साइट सीइंग की उसी गाड़ी में की. फिर जब उसको वापसी की फ़्लाइट थी लेह से दिल्ली, तो वो आराम से उस गाड़ी को कार रेंटल ऑफिस का जो ब्रांच है दिल्ली वाला, उसके डिलीवरी बॉय के हवाले करता है. कहाँ पे? लद्दाख एयरपोर्ट पे, क्योंकि वो कलेक्शन के लिए लेह एयरपोर्ट पे आता है जिस वक्त उसको जाना होता है, और वहाँ से वो फिर फ़्लाइट कैच करता है दिल्ली के लिए, गाड़ी उसको हवाले करता है. तो दिस इज़ द प्रोसीजर हाउ कार रेंटल कंपनीज ऑपरेट. तो ये वर्ल्ड वाइड फिर काफ़ी पॉपुलर हुआ, और आजकल काफ़ी इंडिया में भी काफ़ी पॉपुलर हैं कार रेंटल कंपनीज, क्योंकि
बहुत सारे लोग कार रेंट करते हैं इसी तरीके से, जो खुद ड्राइव करते हैं गाड़ी और जिनको बहुत सारी जगहों पे जाना होता है उस सिटी में, तो दे मेक यूज़ ऑफ दिस सर्विस। और जो कंपनीज ये बिजनेस करती हैं, दे आर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि मार्केटिंग की हम बात करते हैं कि ये जो कार्स जो रेंट पे लेते हैं ये गाड़ियाँ, मतलब जो देते हैं ये गाड़ियाँ रेंट पे, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो तभी सस्टेन करेगा जब उनकी गाड़ियाँ कोई ले ले। अगर उनकी गाड़ियाँ फ्लीट में ही रही और वो रेंट पे किसी ने नहीं ली, तो वो गाड़ी कुछ अर्न करेगी? तो गाड़ी अर्न नहीं करेगी जब तक फ्लीट में है। गाड़ी अर्न करेगी जब ये कोई ले रहा है रेंट पे, तभी उसका जो पर डे वो कितना चार्ज करते हैं वो पेमेंट आएगी। तो दैट मीन्स उस कंपनी के लिए जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि हम कितने हद तक इस गाड़ी को रेंट करें। मतलब मार्केटिंग ये है कि उनकी कोशिश रहती है कि हमारी गाड़ियाँ फ्लीट में न रहे, हमारी गाड़ियाँ लोगों के पास रहे जो इसको यूज़ करे, क्योंकि जितनी ये यूज़ हो जाएगी, जितनी वो रेंट पे देंगे गाड़ियाँ, उतनी उसकी रेवेन्यूज़ आएंगे। तो दैट इज़ अ मेजर मार्केटिंग चैलेंज फॉर देम, हाउ टू एंश्योर that the vehicles are being rented out on daily basis. तो उसके लिए they have to go for extensive marketing strategies, like as I told you that they have to keep a constant liaison with the tour operators, with the travel agents, through their online business websites, then promoting their websites so that more and more people will become aware that this company is renting cars and we can avail that service. So for that they are making a lot of efforts. You got it? तो उसमें ये बात है जो हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो इसी में एक्सटेंसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज उनको अडेप्ट करनी होती हैं कि किस तरीके से वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी अपनी जो सर्विस हैं, वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट है कार रेंटल्स का। इसी तरीके से आपको मैं एक और बिज़नेस के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि एज अ टूरिज़म प्रोफेशनल, सिंस यू आर इन द लास्ट सेमेस्टर नाउ एंड यू आर एट द exit of the course now, and you should know about this that is जो आजकल वर्ल्ड वाइड काफ़ी पॉपुलर हैं, लाइक आई टॉक अबाउट ऊबर। यू नो एनीथिंग अबाउट ऊबर? नाम सुना है कभी ऊबर का आपने? या ओला का नाम सुना है आपने? Am I audible to you? मेरी आवाज आ रही है? No, sir. They are actually big businesses right now. Suppose UBER, यूबर बोलो, ऊबर बोलो, UBER दूसरी है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट हो रही है अभी। तो दूसरी है ओला, जो ज़्यादातर जिसके ऑपरेशंस इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये क्या करते हैं एक्चुअली, सपोज़ आप अभी जम्मू कश्मीर के बगैर लगभग वो पूरे इंडिया में चलती हैं ये सर्विस, एक्सेप्ट ए फ्यू प्लेसेस। तो सपोज़ यू विल गो टू दिल्ली, या you will go to say Chandigarh, or you will go to Mumbai or any other city, Bangalore. तो आप जब एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन ही पहुंचेंगे, आपको अपने फ़ोन पे
ये ऐप है उनकी, ऊबर की भी ऐप है, ओला की भी ऐप है। तो आप वो ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब आप वो ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आप वो डिटेल्स, सपोज़ अपना नाम, फ़ोन नंबर, बाकी सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। तो जो ही आप वो डिटेल्स एंटर करते हैं तो आपके फ़ोन पे एक मैसेज आती है, उसमें एक वेरिफिकेशन कोड जिसे OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड जैसा आता है। तो वो आपको वेरीफाई करना है, वापस रीसबमिट करना है। उससे इंश्योर होता है कि हाँ ये बंदा यही है, इसी नंबर का है। तो उसके बाद आपकी वहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपका अपना यूज़र आईडी रहता है उसमें, और आपकी डिटेल्स सारी उसमें आती हैं, फ़ोन नंबर, नाम, बाकी चीज़ें। इवन आपकी जो पेमेंट डिटेल्स हैं वो भी आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप सपोज़ अब आपको एयरपोर्ट पे गाड़ी चाहिए जहाँ पर आप हैं, आपको ऊबर ऐप आपने ओपन की, फिर आपने उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपको किस टाइप की व्हीकल चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, नॉन AC चाहिए, क्या चाहिए। तो उस ऑप्शन को आप क्लिक करते हैं, कब चाहिए, अभी चाहिए, सपोज़ अगर आपको उसी वक्त चाहिए नाउ, या आपको 1 घंटा बाद चाहिए, 2 घंटा बाद चाहिए, 1 दिन बाद चाहिए, वो भी कर सकते हैं आप। तो टाइम डेट आप मेंशन करते हैं, लोकेशन कहाँ पे चाहिए, अगर प्रेजेंट लोकेशन जहाँ पर आप हैं अभी वहाँ पे चाहिए तो आप प्रेजेंट लोकेशन उसको क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आपको वहीं पे गाड़ी पहुँचती है आपको लेने के लिए। उसी वक्त पहले आपको कन्फर्मेशन आती है, और कन्फर्मेशन के साथ आपको आता है कि ये सपोज़ DLYC 0078 गाड़ी आपको आएगी। ये है सपोज़ किस टाइप की गाड़ी है, सपोज़ सेलोरिया हैं, कुछ हैं। तो ये गाड़ी, इस मॉडल की ड्राइवर का नाम सपोज़ रामचरण है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ये डिटेल्स आपको उसी वक्त आती है मैसेज में, और आप उसी वक्त ट्रैक कर सकते हैं। ऐप में है ट्रैक, तो उसमें आपको ये गाड़ी दिखती है कहाँ पहुँची, क्योंकि वो गूगल मैप यूज़ करती है, और टाइम दिखाती है। सपोज़ अभी 3 मिनट उसको आप तक लगेंगे, वो दिखाता है। और उसके साथ ही आपको ड्राइवर का फ़ोन भी आता है, क्योंकि ड्राइवर को भी उस ऐप के साथ जुड़ा है। जैसे आपने वो ऐप डाउनलोड की है, वैसे ही उस ड्राइवर के पास भी वो ऐप होती हैं, और उसका जो फ़ोन है या कार का जो वो डिस्प्ले सिस्टम है वो उसको इंडिकेट करता है आपकी लोकेशन, और उसका जो व्हीकल है वो उसी के डायरेक्शंस के हिसाब से फॉलो करता है जहाँ पर आप खड़े हैं, और फिर वो आपको फ़ोन करता है। और आप जब फ़ोन उठाते हैं तो एग्जैक्टली आप उसको बोलते हैं, हाँ मैं सपोज़ ब्लैक जैकेट पहन के खड़ा हूँ यहाँ पे, या सपोज़ मेरे हाथ में रेड कलर का सूटकेस है या कुछ। तो उससे वो आपको लोकेट करता है, और आपको भी उस गाड़ी का नंबर होता है, आप उसको दिखाते हैं ऐसे, तो वो आपकी गाड़ी में चढ़ जाता है। तो ये मैकेनिज़्म है। और उसमें क्या होता है, उसमें आप पेमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जब आपने बुकिंग की और आपने डेस्टिनेशन फिक्स की, सपोज़ आपको जाना है करोल बाग सेक्टर 10 या क्या, तो उधर ही वो आपको दिखाता है। सपोज़ आपको चार्जेस अप्लाई होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 550, तो आप वो 550 ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं तो आप फिर उस ड्राइवर को भी पेमेंट कर सकते हैं इन हैंड, उतना पेमेंट जितना वो दिखाता है। तो इसमें ये प्रोविज़न है। तो दिस इज़ अबाउट दिस ऊबर ओला कॉन्सेप्ट। तो इसमें ये है कि आप कहीं भी, सपोज एयरपोर्ट के बगैर आप किसी घर पे हैं, किसी फ्रेंड को मिलने गए हैं आप दिल्ली के किसी इंटीरियर सिटी में, और अब शाम के 10 बज गए, 11 बज गए, आपको वापस जाना है अपने होटल, तो आप वहाँ पर भी ऐसे ही इसी ऐप को यूज़ करेंगे, व्हीकल बुक कर सकेंगे, और विदिन 5, 10, 15 मिनट्स आपको गाड़ी वहीं पे आएगी जहाँ पे आप हो।
तो आजकल जो टूरिस्ट्स हैं बड़े सिटीज़ में वो इसी ऐप का ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी रहती है स्पेशली फॉर बिजनेस टूरिस्ट्स, बिकॉज दे हैव टू गो टू दे हैव टू मीट पीपल, दे हैव टू विजिट वेरियस प्लेसेस। तो वो इस ऐप का यूज़ करते हैं एंड दे आर एबल टू अवेल दिस सर्विस इन ए वेरी नाइस वे। तो ये चीज़ें जो है इसमें बहुत काफ़ी ये सिग्निफिकेंस रखती हैं इस मामले में। यू गॉट इट। अब देखो आप मैकेनिज्म कैसे होता है इसका। अब जो गाड़ियाँ इसमें आती हैं आप सोचोगे कि फिर ये गाड़ियाँ कैसे आती हैं 5 मिनट में, 10 मिनट में या कुछ। ये जो ऊबर हैं ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनका जो नेटवर्क है वो पूरे वर्ल्ड में है। तो ये क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंस मोस्टली ऑनलाइन होती है। जैसे मैंने बोला इनके पास अपनी ऐप्स हैं प्ले स्टोर पे, तो ह्यूज एडवर्टीजिंग प्रमोशन है क्योंकि लोगों को पता है इस सर्विस के बारे में। लोग इनकी ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, अपने फ़ोन्स पे डाउनलोड करते हैं। तो इनके पास लोगों का ह्यूज डेटाबेस है। और फिर जो ये गाड़ियां हैं ये एक्चुअली ड्राइवर्स हैं जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं, या कुछ लोग ड्राइवर रखते हैं गाड़ी को और कुछ कोई पास अपनी गाड़ी है और वो ऊबर के साथ जुड़ते हैं। तो जब वो जुड़ते हैं उनके लिए उनकी अपनी पॉलिसी होती हैं, जो व्हीकल ऑनर्स या ड्राइवर्स पॉलिसी हैं। तो उसमें उनको ये टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं। सपोज़ अगर, क्योंकि उनको बिज़नेस आता है ऊबर के थ्रू और ऊबर उस बिज़नेस के लिए उनका कमीशन काटता है। सपोज़ अगर 550 मैंने दिए, उसमें लगभग 50 रुपया ऊबर लेगा कमीशन, तो 500 ड्राइवर को जाएगा। ड्राइवर को अब लेकिन ड्राइवर की गाड़ी अपनी है, ड्राइवर का फ्यूल है, ड्राइवर की मेहनत है, लेकिन ऊबर उसको मार्केटिंग करता है, ऊबर उसकी बिजनेस रन करता है, तो उसके लिए वो अपना कमीशन लेते हैं। लेकिन ड्राइवर को एक चीज़ बेनिफिट है कि उसको काम नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो चीज़ ऊबर करता है उसके लिए। उसको खाली फ़ोन पे आती है मैसेज, उसका फ़ोन बज़ होता है कि आपको यहाँ पे कस्टमर वेट कर रहा है, उसको उठाना है। और अब देखो, अगर आप सपोज़ दिल्ली में हैं, सपोज़ चांदनी चौक के पास, और आपको जाना है चांदनी चौक से कुतुब मीनार या कहीं भी, और आपने वहाँ पे अपनी ऐप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपने बुक की गाड़ी। और जब आपने गाड़ी बुक की तो वहाँ पे सबसे नज़दीक में उस वक्त जो होगा, जैसे मैंने बोला ऊबर के साथ लाखों ड्राइवर्स जुड़े हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं, तो जो उन ड्राइवर्स में से सबसे नज़दीक आपकी लोकेशन को होगा उस टाइम, उसको पहले मैसेज आएगी कि इस कस्टमर को गाड़ी की ज़रूरत है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं होगा वो ड्राइवर उस वक्त, सपोज़ उस कुतुब मीनार आपको लेने में या कहाँ जाना है, तो वो उसको पास करेगा, मतलब वो उसको एक हिसाब से रिजेक्ट करेगा उस डिमांड को। और जब वो रिजेक्ट करेगा तो उसके बाद जो नेक्स्ट होगा ड्राइवर जो आपकी उस लोकेशन के नज़दीक है, उसको कॉल पास हो जाएगी, तो वो आपको वहाँ से पिक करेगा। इवन रात के टाइम, सपोज रात के 12 बजे 1 बजे भी अगर आपको फैसिलिटीज ज़रूरत है तो उस वक्त भी गाड़ी आएगी। और ड्राइवर को पहले ही समझाया जाता है इस ऐप को, क्योंकि उसके पास ऐप का एक वर्जन होता है जो ड्राइवर्स वर्जन होता है। उसमें उसको कहा जाता है, सपोज रात का टाइम है 1 बजे रात और आप उस वक्त सोना चाहते हैं, आप नहीं जाना चाहते हैं बिज़नेस पे, तो उस वक्त वो अपना जो है ऑफलाइन मोड में रखता है अपनी वो ऐप में जो उसको ऑप्शन होता है, ताकि उसको अगर उस लोकेशन में उस वक्त किसी को गाड़ी ज़रूरत है तो उसको कॉल नहीं आएगी। अगर वो एक्टिव मोड में रखता है वो, दैट मीन्स ही इज़ विलिंग, उसको रात को भी अगर कॉल आएगी उस वक्त तो वो जाएगा। तो वो उसको ऑप्शन होता है कि आपको एक्टिव मोड में अगर रहना है तो आपको कॉल्स आएगी उस टाइम, अगर आपको नॉन एक्टिव है
तो आपको उस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, फिर किसी दूसरे को आएगा। तो फिर ड्राइवर्स जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं, अगर वो उस वक्त मूड नहीं है उनको जाने का कहीं कस्टमर लेने का, तो वो ऑफ नॉन एक्टिव मोड में रखते हैं। तो फिर उस वक्त उसको कॉल आ जाएगी जो उस वक्त एक्टिव मोड में है। तो इस तरीके से ये बिज़नेस ऑपरेट होता है, और यही जो है कॉन्सेप्ट ये ओला में भी ऐसे ही होता है, या बाकी जो ऐसी टाइप्स के बिजनेसेस हैं, दे आर ऑपरेटिंग इन द सेम वे। ओके, so this was about the concept of this type of business that you should know being in the tourism industry.